Go to chapter number. We will go now for chapter number 9. This is the chapter number 9, and it's a second volume. Right. So we are entering in the second volume of this 10+2 physics, and the name of the chapter is ray optics. The name of the chapter is ray optics. So this is ray optics and optical instruments, and this is optical instruments, array optics and optical instrument. Okay, so this is our new chapter. The topic of discussion is, in this video I will just concentrate on the introduction part. As the introduction is this is only I'm starting with the introduction part of this chapter. So in introduction part I would like to discuss कि जो नेचर है, कुदरत है, कुदरत ने हमें आंखें दी हैं, ह्यूमन आइज. So human eye are sensitive to human eyes. These are sensitive to human eyes are sensitive to the electromagnetic waves. They are sensitive to the electromagnetic waves, right? And within a small range of electromagnetic spectrum. So we have studied about the electromagnetic spectrum so far. This is what is the electromagnetic spectrum is. And in this electromagnetic spectrum what we have studied, हमने पढ़ा कि in order of decreasing frequency there is a cosmic rays, and then gamma rays, and then X-rays, okay, and then ultraviolet rays, then visible rays, then infrared rays, then microwaves, and then radio waves, right? So from this electromagnetic spectrum, this is this cosmic rays has highest energy, there is a highest frequency, and it has the lowest frequency. So this is of the highest frequency, and this is of the lowest frequency. So from this electromagnetic spectrum, इस electromagnetic spectrum से हमारे पास कुछ the some part of electromagnetic spectrum, I mean the some part of electromagnetic spectrum. So some part of electromagnetic spectrum, this is from some part of electromagnetic spectrum. This is from 400 nanometer to 750 nanometer. So 400 nanometer to 750 nanometer, इस स्पेक्ट्रम के इस पार्ट को आप लाइट बोलते हैं, right? So the spectrum that lies in this range of the wavelength is called the light, right? So this part is light, right? This light plus our sense of vision, the light plus our sense of vision helps us to see the world around us, be able to see the world around us. इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम इस सारे संसार को देख पाते हैं, राइट? किस वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो विजिबल लाइट है, so विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की रेंज का है, इसको लाइट बोलते हैं. और लाइट और हमारी जो सेंस ऑफ विज़न है, देखने की जो ताकत है, उसकी मदद से हम इस संसार को देखते हैं, राइट?
अब अगली समस्या हमारी ये है कि हम लाइट के बारे में और क्या जानते हैं। हम आगे चलते हैं कि जो लाइट है, this the two important properties I would like to discuss with you. The two important property are like this. Number one thing about light, and this is second thing about light is, so one thing is the speed of light. So one is the speed of light, all right, and the second, light travel in straight line, light travel in straight line, light travel in straight line. So as the questions of speed of light, it take finite time, it take long time. हमारे पूर्वजों को ये जानने के लिए बहुत लंबा समय लगा कि लाइट की जो स्पीड है वो फाइनाइट होती है और मेजरेबल होती है. This is measurable also. It take finite time to accept that the speed of light is finite and measurable. Okay, so it is now calculated by the peoples with the different calculations. Then speed of light is 2.99792458 मीटर पर सेकेंड. और यदि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होगी तो आप इसको लगभग ऐसे ले सकते हैं 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और आपको इसके बारे में और क्या जानना है? जो जानना है वो ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड है. दिस इज इन वैक्यूम, दिस इज हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड, द हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड, हाईएस्ट, दिस इज हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड. मतलब क्या हुआ कि कोई दुनिया की कोई चीज़ 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. दिस इज हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन नेचर. कुदरत में कोई भी चीज़ इस वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं चल सकती. नाउ एज द क्वेश्चंस टू द लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इज कंसर्न. अब हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसको हम अगले पेज में करें तो आपको आसानी होगी सीखने में. तो हम अगले पेज पर चलते हैं. देखिए, हमने पढ़ा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इट ट्रेवल्स लाइक दिस. सो इसमें हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं. ये देखिए ज़रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का होगा. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट ट्रेवल्स लाइक दिस. अब इसमें से सवाल जवाब अपने आप पैदा होते हैं कि एक ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. इसको हमने, हालांकि इसको पहले भी हमने डिस्कस किया है पर फिर भी हम आपके साथ इसको फिर डिस्कस करना चाहेंगे. आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने पिछला वीडियो नहीं सुना है. आपका धर्म आपके साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है. ओके, सो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और इसके लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया. अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा. इट विल ट्रैवल नियरली लाइक दिस. ओके, सो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा. इट विल प्रोपेगेट अलोंग बाई डायरेक्शन, राइट. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे चलेगा. और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा अलोंग जेड एक्सिस, जैसे सांप चलता है. और आप यहीं ये ना कहना शुरू कर दें कि जैसे सांप होता है. सो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल ट्रेवल अलोंग जेड एंड माइनस जेड एक्सिस. सो हाउ इट विल लुक लाइक, इसको आप ऐसा देखें. ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
एम्पलीट्यूड है B0 जिसको हम कह सकते हैं, ये देखिए, राइट। दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस डायग्राम को हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यदि आप उसको रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो अपीयरेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो कुछ इस तरीके से चलेगी, राइट। So how electromagnetic wave will travel? So it will look like this. Right? And the magnetic field vector will move like this. Right? So this is now once again here the electric vector is, this is the electric vector, and this is the magnetic vector. This is the magnetic vector. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। अब सवाल ये है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रैवल करती है तो एक हम कैसे कह सकते हैं कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पिछले इस वीडियो में मैंने आपको कहा कि जो लाइट है वो ऐसे ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने बात कही कि इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। So how I can say that it travel it in a straight line? So it looks like this. How we can say that it travel in a straight line? It's a question. फिर ये किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर इसका क्वेश्चन का ये है कि जो इसका जो स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें जो लाइट है वो उसका जो वेवलेंथ हमने पढ़ा कि ये 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर की रेंज का है। और ये जो वेवलेंथ है, this wavelength is so small in comparison to the objects nearest to it. So एक स्टेज पर हम इसको पढ़ेंगे कि जो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द रीजन वी कंसिडर इट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, but it travel like a ray. It's a ray of light. When light will travel from one point to another point, we just consider it that it travel like this. हम इसको ऐसे consider करेंगे कि जो light है वो ऐसे travel कर रही है। Okay, so this is called a ray of light. This is called a ray of light. ये होगी ray of light. This is a ray of light, right? And if you have the bunch of these rays, if you have bunch of these rays like this, so bunch of these rays, okay, if this is a bunch of these rays, so in this case you can say that it is a beam of light. This case is a beam of light. Bunch of ray leads to a beam of light, right? So in the next chapter we will study the light behave as a wave as well. So इस जो हमारे पास जो ये चैप्टर होगा, इस चैप्टर में हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें हम करेंगे क्या क्या सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कुछ फिनोमिनाज पढ़ेंगे। वो जो फिनोमिना होंगे वो क्या होंगे, एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ेंगे हम, वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन जो आपने 10th में भी पढ़ा है, और वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन, and we will study about the dispersion of light and dispersion of light. We will study about the dispersion of light. Okay, तो 3 फिनोमिना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे,
We will study about the reflection of light. We will study about refraction of light. We will study about the dispersion of light. So I would like to discuss in detail. when जब इसका डिस्कशन आएगा तो उसी समय हम इसके ऊपर ऊर्जा लगाएंगे. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज़ करके, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का और रिफ्रैक्शन का यूज़ करेंगे. यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन we will study about the image formation. इससे हम पढ़ेंगे image formation, right? So with the help of this we will study about the image formation. Using this concept we will study about the image formation in this chapter. Image formation, और ये जो image formation होगी इसके लिए हम जो surfaces लेंगे वो plane होगा, spherically reflecting और refracting surfaces होंगे. Image formation for the plane surface से भी हम कंसिडर कर सकते हैं. प्लेन सरफेस या आपके पास सरफेस होंगे स्फेरिकल, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. और बाकी हम करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. विल स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में, और हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जिसमें ह्यूमन आई हम पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग परमात्मा का बनाया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन आई. So this is all about the introduction part. If you have some question, please do write in the comment box freely. Thank you very much.